مفت کرم داشتن پیش ہے منشی پریم چند کی یہ ایک چھوٹی سی کہانی۔ ان دنوں حسن اتفاق سے حاکم ضلع ایک صاحب ذوق بزرگ تھے جنہوں نے تاریخ اور قدیم سکہ جات میں اچھی تفتیش کی ہے۔ خدا جانے کیسے دفتری کاموں سے انہیں ان مشاغل کے لیے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے ان کے کارنامے پڑھے تھے اور ان کا غائبانہ مداح تھا، لیکن ان کی افسری مزید تعلقات میں مانے تھی۔ مجھے یہ تکلف تھا کہ اگر میری جانب سے پیش قدمی ہوئی تو عام تجربے کے مطابق وہ میری حکام جوئی پر محمول کی جائے گی، اور میں کسی حالت میں بھی یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں تو حکام کو دعوتوں اور تقریبوں میں بھی مدعو کرنے کا مخالف ہوں، اور جب کبھی سنتا ہوں کہ کسی افسر کو کسی رفاہ عام کے جلسے کا صدر بنایا گیا، یا اسکول یا شفاخانہ یا بدھوا آشرم کسی گورنر کے نام سے منسوب ہوا، تو برادران وطن کی غلامانہ ذہنیت پر گھنٹوں افسوس کرتا ہوں۔ مگر جب ایک دن حاکم ضلع نے خود میرے نام ایک رقعہ بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے بنگلے پر تشریف لانے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے، تو میں بڑے شش و پنج میں پڑ گیا۔ کیا جواب دوں؟ اپنے دو ایک دوستوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، صاف کہہ دیجئے مجھے فرصت نہیں۔ وہ حاکم ضلع ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے، کوئی سرکاری یا ضابطے کا کام ہوتا تو آپ کا جانا مناسب تھا، لیکن ذاتی ملاقات کے لیے آپ کا جانا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آخر وہ خود آپ کے مکان پر کیوں نہیں آئے؟ اس سے کیا ان کی شان میں بٹا لگ جاتا تھا؟ اس لیے تو خود نہیں آئے اور آپ کو بلایا کہ وہ حاکم ضلع ہیں۔ اس احمق عوام کو یہ بھی سمجھ میں نہ آئے گی کہ دفتر کے باہر وہ بھی ویسے ہی انسان ہیں جیسے ہم یا آپ۔ شاید یہ لوگ اپنی بیوی سے بھی افسری جتاتے ہوں گے، انہیں اپنا عہدہ کبھی نہیں بھولتا۔ ایک صاحب نے جو لطیفوں کے خزانچی ہیں، ہندوستانی افسروں کے کئی پرمذاق تذکرے سنائے۔ ایک افسر صاحب سسرال گئے، شاید بیوی کو رخصت کرانا تھا جیسا عام رواج ہے۔ خسر صاحب نے اس موقع پر رخصت کرنے سے انکار کیا، کہا، بیٹا ابھی اتنے دنوں کے بعد آئی ہے، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، بھلا اور نہیں تو 6 مہینے تو رہنے دو۔ ادھر بیوی نے بھی پیغام کہلا بھیجا، ابھی میں جانا نہیں چاہتی، آخر ماں باپ سے مجھے بھی تو محبت ہے، کچھ تمہارے ہاتھ بک تھوڑی گئی ہوں۔ میاں داماد ڈپٹی کلیکٹر تھے، جامے سے باہر ہو گئے۔ خسر پر سمن جاری کر دیا۔ بیچارہ بوڑھا آدمی دوسرے دن صاحبزادی کو لے کر داماد کی خدمت میں حاضر ہوا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ یہ لوگ ایسے خردماغ ہوتے ہیں۔ اور پھر تمہیں حاکم ضلع سے لینا کیا ہے؟ اگر تم کوئی باغیانہ یا اشتعال انگیز قصہ یا مضمون لکھو گے، فوراً گرفتار ہو جاؤ گے، مطلق رعایت نہ کی جائے گی۔ اپنے لڑکے کے لیے قانون گوئی یا تحصیلداری کی فکر تمہیں ہے نہیں، پھر خواہ مخواہ کیوں دوڑے جاؤ؟ لیکن میں نے دوستوں کی صلاح پر کار پیرا ہونا تہذیب کے خلاف سمجھا۔ ایک شریف آدمی قدر افزائی کرتا ہے تو اس سے محض اس بنا پر بے اعتنائی کرنا کہ وہ حاکم ضلع ہے، تنگ ظرفی ہے۔ بے شک حاکم ضلع صاحب میرے غریب خانے پر آتے تو ان کی شان کم نہ ہوتی، وزادار آدمی بے تکلف چلا آتا، لیکن بھئی ضلع کی افسری بڑی چیز ہے، اور قصہ نگار کی ہستی ہی کیا ہے۔ انگلینڈ یا امریکہ میں افسانہ نگاروں کی میز پر مدعو ہونے میں وزیر اعظم بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ ہمارا ملک ہے جہاں ہر ایک رئیس کے دربار میں شاعروں کا غول قصیدہ خوانی کے لیے جمع رہتا تھا، اور اب بھی تاج پوشی کے موقع پر ہمارے اہل قلم بن بلائے رئیسوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قصیدہ پیش کرتے ہیں، انعام پاتے ہیں۔ تو تم ایسے کہاں کے ہو کہ حاکم ضلع تمہارے گھر پر چلا آئے؟ وہ افسر ہے، تم معمولی مضمون نگار ہو۔ جب تم میں اس قدر لڑکپن اور تنک مزاجی ہے تو پھر وہ تو ضلع کا بادشاہ ہے، اگر اسے غرور بھی ہو تو جائز ہے۔ کمزوری کہو، جہالت کہو، خردماغی کہو، لیکن پھر بھی جائز ہے، اور خدا کا شکر کرو کہ افسر صاحب تمہارے گھر نہیں آئے، ورنہ ان کی خاطر مدارات کا سامان تمہارے یہاں کہاں تھا؟ گد کی ایک کرسی بھی تو نہیں ہے، 3 پیسے کی 24 بیڑیاں پی کر دل خوش کر لیتے ہو۔ ہے توفیق روپے کی 2 سگار پینے کی؟ کہاں وہ سگار ملتا ہے اس کا پتہ ہے؟ اس کی خبر ہے تمہیں؟ اپنی تقدیر کو سراہو کہ وہ خود نہیں آئے، تمہیں بلا لیا، 4-5 روپے بگڑ ہی جاتے اور شرمندگی بھی ہوتی۔ خدا نخواستہ اور تمہاری شامت اعمال سے کہیں ان کی اہلیہ بھی ہمراہ ہوتی تو قیامت ہی آ جاتی۔ ان کی مہمان نوازی تمہاری دھرم پتنی جی کر سکتی تھیں؟ وہ تمہارے گھر میں یقیناً جاتیں اور تمہارے لیے موت کا سامان ہوتا۔
तुम अपने घर में फटे पुराने पहनकर अपनी बेनवाई में मगन रहकर ज़िंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी खुददार शख्स ये गवारा नहीं कर सकता कि उसकी खस्ता हाली दूसरों के लिए मायाए तफरीह हो। उन लेडी साहिबा के सामने तुम्हारी तो ज़बान बंद हो जाती और यही जी चाहता कि ज़मीन फट जाती और तुम उसमें समा जाते। चुनांचे मैंने हाकिम ज़िला की दावत कबूल की और बावजूद ये कि इसमें किसी कदर नागवार रौनक थी, लेकिन शफ़क़त और खुलूस ने उसे ज़ाहिर न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का मौका न दिया। अफसराना फितरत को तब्दील करना उनके इम्कान से बाहर था। मैंने सोचा ये ज़ाती मामला है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, कुछ अदबी गपशप की और वापस आया। किसी से इसका जिक्र करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने इस वाक़े को ज़रा अहमियत न दी, गोया बाज़ार सब्ज़ी ख़रीदने गया था। लेकिन मुखबिरों ने न जाने कैसे इसकी खबर लगाई। ख़ास हलक़ों में ये चर्चे होने लगे कि अफसर ज़िला से मेरे बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं और वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मुबालग़े ने मेरी वक़्त में और भी इजाफ़ा कर दिया। यहाँ तक मशहूर हुआ कि वो मुझसे सलाह लिए बग़ैर कोई तजवीज़ या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई जी होश आदमी इस किस्म की शोहरत से फ़ायदा उठा सकता था। अहले गरज़ बावले होते हैं, तिनके का सहारा ढूंढते फिरते हैं। उन्हें इसका यकीन दिलाना कुछ भी मुश्किल नहीं था कि मेरे ज़रिए उनका मतलब पूरा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी हरकतों को ज़लील समझता हूँ। सदहा असहाब अपनी अपनी दास्तानें लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेजा ज़्यादती की थी, कोई इनकम टैक्स वालों की सख्ती से नालां था, किसी को ये शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी हक़ तलफ़ी हो रही है और उसके बाद के आदमियों को तरक्कियाँ मिल रही हैं। उसका नंबर जब आता है कोई लिहाज नहीं किया जाता। अलाहाज़ा इस किस्म की दास्तान रोज़ मुझ तक पहुँचने लगी, लेकिन मेरे पास इन सब के लिए एक ही जवाब था, मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक हमजमात दोस्त वारिद हुए। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे। कोई 45 साल की पुरानी बात है। मेरी उम्र 8-9 साल से ज़्यादा न थी, वो भी करीब करीब इसी उम्र के, मगर मुझसे कहीं तवाना और फरबे थे। मैं ज़हीन था, वो हद दर्जे के गनी। मौलवी साहब उनसे आजिज़ थे और उन्हें सबक पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। मैं इसे अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता था और मौलवी साहब की कमची जहाँ लाचार थी वहाँ मेरी हमदर्दी कामयाब हो गई। बलदेव चल निकला और खालिक बारी तक आ पहुँचा, मगर उसी दरमियान में मौलवी साहब की वफ़ात ने उस मकतब का ख़ात्मा कर दिया और तलबा भी मुंतशिर हो गए। तब से बलदेव को मैंने सिर्फ़ 2-3 बार बारात में देखा। मैं अब भी वही दुबला पतला हूँ और वो अब भी देवकामत। राम राम हुई, एक दूसरे की खैर आफ़ियत पूछी और अपनी अपनी राह चले। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मज़े में तो हो, कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बलदेव ने दर्दनाक अंदाज से कहा, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं और क्या। तुमसे मिलने का बहुत दिनों से इश्तियाक था। याद करो वो मकतब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4 हरफ पढ़ लिया और अपनी ज़मींदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं मूर्ख बना रहता। तुम मेरे गुरु हो, भाई हो, सच कहता हूँ, मुझे जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। न जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ, कुछ सूझता ही नहीं था। तुम तो तब भी बड़े ज़हीन थे। ये कहकर उन्होंने मुझे पुरइज़्ज़त नज़रों से देखा। मैंने बाचश्मे तर कहा, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले से लिपट जाऊँ। 45 साल की मुद्दत गोया बिल्कुल गायब हो जाती है। वो मकतब आँखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी दिल फरेबियों के साथ ताज़ा हो जाता है। बलदेव ने भी रिक्कत आमेज़ लहजे में जवाब दिया, मैंने तो भाई तुम्हें हमेशा अपना मुरब्बी और रहनुमा समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज़ भर की हो जाती है कि वो मेरे बचपन का दोस्त जा रहा है जो वक्त पड़ने पर कभी दगा न देगा। तुम कुछ खाते पीते क्यों नहीं, सूखते क्यों जाते हो? घी न मिलता हो तो 1-2 कनस्तर भिजवा दूँ? अब तुम बूढ़े हुए, खूब डटकर खाया करो। अब तो बदन में जो कुछ ताकत है वो खाने पीने की बदौलत है। मैं तो अब भी सेर दूध और पाव भर घी उड़ाए जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। उम्र भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे। कोई पूछता है तुम्हारी क्या हालत है? अगर आज कंधा डाल दूं तो कोई 1 लोटा पानी को न पूछे। इसलिए खूब खाता हूं और सबसे ज़्यादा काम करता हूं। वही जो बड़ा लड़का है उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। अच्छा खासा पहलवान है, किसी से दबता नहीं है। दारोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब से उसकी घात में लगे हुए थे। उधर गांव में एक डाका पड़ गया।
दारोगा जी ने तहकीकात में उसको भी फांस लिया। 1 हफ्ते से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील साहब डिप्टी कलेक्टर के इजलास में है और मोहम्मद खलील और दारोगा की गहरी दोस्ती है। ज़रूर सज़ा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है। हमें और कोई उम्मीद नहीं है। सज़ा तो होगी ही, इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम ज़िला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है, आप ख़ुद तहकीकात कर लें। बस बचपन के साथ ही हो, इनकार मत करना। जानता हूँ कि तुम इन मामलात में नहीं पढ़ते और न पढ़ना चाहिए। अफसर ज़िला से तुम्हारी दूसरी ही तरह की मुलाकात है, तुम क्यों इन क़ज़ियों में पड़ोगे? लेकिन ये घर का मामला है, इतना समझ लो। और मुकदमा बिल्कुल झूठा है। नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लड़के की माँ रो रो कर जान दिए डालती है। बीवी ने दाना पानी छोड़ रखा है। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू बेआबो दाना पड़ी हुई हैं। अगर सज़ा हुई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर सबको ढारस दी है कि जब तक हमारा बचपन का दोस्त ज़िंदा है, कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा। मेरी जानिब से जितने एतराज़ात हो सकते थे उनका जवाब बलदेव सिंह ने पहले ही दे दिया था। अगर उनका इरादा करता हूँ तो सर हो जाएगा, गला न छोड़ेगा। कोई जवाब न सूझा। आखिर मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि मैं जाकर साहब से इसका ज़िक्र करूँगा, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि इसका कुछ नतीजा हो। हुक्काम मातहतों के मामले में बहुत कम दखल दिया करते हैं। तुम जाकर कह दो, तकदीर में जो है वो तो होगा ही। अच्छी बात है, तो कल जाओगे? कल ही जाऊंगा। बलदेव सिंह को रुखसत करके मैंने अपना मजमून ख़त्म किया और आराम से खाना खाकर लेटा। मैंने बलदेव को झांसा दिया था। मैं पहले ही बता चुका था कि हुक्काम आम तौर पर पुलिस का एतबार करते हैं। ये कहने की गुंजाइश थी कि साहब ने इस मामले में दखल देना मुनासिब न समझा। साहब के पास जाने का मैंने ख्वाब में भी ख्याल न किया था। मैं इस वाक़े को बिल्कुल भूल गया था कि 8वें दिन बलदेव अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे कदमों पर सर रख दिया और एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया। भाई साहब ने दारोगा जी को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो। अगर फिर ऐसी शरारत की तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दारोगा बहुत पशेमान हुए। जब साहब ने इसे बरी कर दिया तो मैंने दारोगा जी को झुककर सलाम किया। बेचारे पर घड़ों पानी पड़ गया। ये तुम्हारी सिफारिश की बरकत है बिरादर। अगर तुमने मदद न की होती तो हम तबाह हो गए थे। ये समझ लो 4 आदमियों की जान बच गई। मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था कि उसके पास नाहक जाते हो, वो बड़ा बेमुरव्वत आदमी है, उसकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। आदमी वो कहलाता है जिससे ज़रूरतमंदों का काम निकले। वो क्या आदमी है जो किसी की कुछ सुने ही नहीं, यही कहे मुझसे कुछ मतलब नहीं। लेकिन भाई, मैंने किसी की ना सुनी। मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था कि तुम चाहे कितने ही रूखे बेमुरव्वत हो, लेकिन मुझ पर ज़रूर रहम करोगे। ये कहकर बलदेव सिंह ने अपने लड़के को इशारा किया। वो बाहर गया और एक बड़ा सा गट्ठर उठा लाया जिसमें अनवाओ अक़साम की देहाती सौगातें बंधी हुई थीं। हालांकि मैं बराबर कहे जा रहा था, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मगर उस वक्त भी मुझे ये तस्लीम करने का हौसला न हुआ कि मैं साहब के पास गया ही नहीं। जो कुछ हुआ खुद ब खुद हुआ। मुफ्त का एहसान छोड़ना तबीयत ने गवारा न किया। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुफ्त करम दाश्तन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुंशी प्रेमचंद की कोई और कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मैं मोइन शमसी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।